So when rod moves in perpendicular magnetic field, उसके अंदर EMF induce हो जाता है because of the forces acting on the electrons. L length की rod है, अगर वो B magnetic field में, if it moves, I think we did just a quick recap of the concept. With velocity v in a perpendicular magnetic field. Magnetic field is into the plane, rod is in the plane, and velocity is perpendicular to them. इसके टर्मिनल के across EMF induce होता है, and that is BVL, and that direction of EMF is given by right hand rule. अंदर की तरफ thumb is towards the motion of the conductor, middle finger is towards the velocity, towards the EMF induced. EMF is always from negative to positive. तो हमने एक EMF इंड्यूस कर लिया था किसी भी मूविंग रॉड में. दिस वी हैव डन इन यस्टरडेज क्लास. सो अगर किसी ने क्लास मिस की है, यू जस्ट गो टू द यस्टरडेज वीडियो लेक्चर. वीडियो लेक्चर अगर अपलोड नहीं होते या आपको नहीं दिखते तो आप एक बार सृष्टि मैम को मैसेज कर दिया करिए. शी विल अपलोड इट. दिस वाज द जनरल फॉर्मूला फॉर एनी केस. और हमने रोटेटिंग रॉड के लिए भी कर लिया था. रॉड ऑफ लेंथ L rotates, ये हमने कल किया था, that you missed. If there is a rotating rod, L length की rod B magnetic field में, if it rotates with a constant angular velocity omega, then because of that rotation, इसके terminal के across व्योम. Yes. अभी शायद कल की क्लास में नहीं थे. Yes sir. क्यों? सर आज सुबह एग्जाम था. आज सुबह एग्जाम था. कहाँ पे? स्कूल में? सर स्कूल का. स्कूल का? यस. EMF तो मैं क्विकली बस रिवाइज कर लेते हैं. ये EMF induced in rotating rod. रोटेटिंग रॉड में इसके एक एंड के अबाउट अगर एक्सिस, द एक्सिस इज पासिंग थ्रू वन एंड परपेंडिकुलरली, रॉड इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज. के क्लॉकवाइज रोटेशन से भी इसके क्रॉस इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनमें वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी से फोर्स आएगा, फोर्स से इलेक्ट्रॉन एक साइड शिफ्ट हो जाएंगे एंड देयर विल बी EMF इंड्यूस्ड. तो किसी छोटे से रॉड में एट a distance r from the center, length dr, इसमें जो EMF इंड्यूस होगा that will be B into V into L. So B into V into dr. P is R omega into dr. और इसको फिर हम इंटीग्रेट कर लेते हैं for the entire length 0 to L. Integrate this from 0 to L, integrate from 0 to E induced. EMF induced will be half B omega L square. Half B omega L square is the EMF induced in a rotating rod. जब उसको एक एंड के अबाउट रोटेट करते हैं, so it is rotating like this. राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल लगाएंगे. मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, थंब टुवर्ड्स वेलोसिटी, मिडिल फिंगर बाहर. मिडिल फिंगर इज ऑलवेज डायरेक्शन ऑफ EMF. डायरेक्शन ऑफ EMF इज फ्रॉम नेगेटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव. किसी भी रोटेटिंग रॉड के अक्रॉस EMF इंड्यूस हो जाता है, एंड दैट EMF इंड्यूसेस half B omega L square. And then we discussed that if there are n number of rods, and they all are joined, anyone who attended yesterday's class, ये आपके notes में होगा, so you don't need to write it again. I'm just quickly revising what we did in yesterday's class, 5:30 to 7. Rotating rod about one end, EMF induces half B omega L square, and this is the potential difference between the point Q and point P. Point P जिसके about ये excess pass हो रही है. Similarly, if suppose there are n number of rods, each of length L, joined at the center, and this structure is rotating over suppose a circumference, a metallic circumference which are joined. So this is symmetrically n number of rods connected together.
and it rotates with a constant angular velocity omega. So in this case, what happens is each rod, जिसको हम spokes भी बोल सकते हैं, each rod has an EMF developed because of the magnetic field. Each rod has length L. So each rod will have the same EMF induced. और उन सारे rod के अंदर की तरफ potential negative होगा with the help of the right hand rule. We can figure out this. Each rod by symmetry has the same EMF और उन सबके negative terminal अंदर की तरफ they are attached. So this will become the scenario. हर एक rod के अंदर एक EMF induce हो जाएगा and that EMF induced in each rod will be equal to half B omega L square. Now there are n number of cells. Overall EMF will be calculated by their combination. So because सबके negative terminal आपस में connected है और positive terminal बाहर इस wire से connected है, so they all are connected in parallel. When their cells they have same EMF, n identical cells are connected in parallel. N cells अगर identical connected हो parallel में, then the equivalent EMF will be same as one single cell. So it doesn't matter on the how many rods are connected. The potential difference between center and circumference will always be same as that of one single rod. एक रॉड का फॉर्मूला इंटीग्रेटर के निकाला, अगर ऐसी n नंबर ऑफ रॉड्स आपस में अटैच हो सेंटर पे, ये हम शायद पहले कर चुके हैं ना यूजर थर्सडे बैच में. यस सर्कल किया था ये. हाँ बेटा वीकेंड बैच में कल किया था, ट्यूसडे थर्सडे वाले बैच में हमने पहले कर रखा है, इसलिए मैं थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ जिन्होंने कल की क्लास मिस की. मूविंग रॉड में BVL, रोटेटिंग रॉड में हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर. अगर n रॉड्स को आपस में ज्वाइन करके एंड देन दैट व्हील इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर इज द EMF because there are n number of rods but each rod has same EMF and they are connected in parallel. अगर ऐसी इनफाइनाइट रॉड्स को आपस में कनेक्ट कर दें और सपोज इफ वी कंसीडर अ मेटेलिक डिस्क of radius r that is rotating about an axis passing through center. Instead of rod कि हम कोई metallic disc ले लेते हैं, we consider this as copper disc and it is rotating in a perpendicular magnetic field. Radius of ये किसी भी metal की disc हो सकती है, not necessarily copper. It's a metallic disc which is kept perpendicularly in a magnetic field and it is rotating with constant angular velocity omega and the radius is r. When it rotates in a magnetic field, ये सब हमने कल की क्लास में कर लिया. This was the last topic we did in yesterday's class. कल क्लास क्यों नहीं की वैसे जाए? Every Friday होता है. अब every Friday क्लास नहीं करते. फोटो 5:30 वाली कर लिया करो, क्या फर्क पड़ता है? सेम ही चल रहा है, थोड़ा सा आगे पीछे होता है. कल तो हमने खैर 4 to 5:30 क्वेश्चंस किए थे. So we can consider this as a combination of rods of length r and they all will be connected in again parallel. सभी में सेम EMF इंड्यूस होगा और हम इसको पैरेलल में कनेक्ट अज्यूम कर सकते हैं. EMF induced again will be half B omega r square, does not depend upon the number of rod. So किसी भी डिस्क में if it is rotated in a perpendicular magnetic field, इसके across EMF induce हो जाता है and that EMF is half B omega into r square. R is the radius of that metallic disc when it is rotated in a perpendicular magnetic field. इसका यूज कहाँ करते हैं याद है? I explained last class. प्रैक्टिकली कहाँ पे यूज करते हैं इसको? मैकेनिकल टॉयज, जो चाबी वाले खिलौने होते थे, वो मंकी जो बजाता था कुछ समथिंग कभी बचपन में, उस पर लाइट भी जलती थी. वो लाइट का सोर्स क्या है?
This is generator, इसको बोलते हैं metallic disk generator. This is used in the mechanical toys to produce small electricity. Mechanical disk, sorry, copper disk generator. कॉपर की डिस्क ले लेते हैं बिकॉज कॉपर की कंडक्टिविटी थोड़ी बेटर है, मोर रेजिस्टेंस कम, कॉपर डिस्क जनरेटर. ऑल दोज मैकेनिकल टॉयज जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए चाबी भरते हैं, उसके साथ स्प्रिंग अटैच होती है, स्प्रिंग में कॉइल की एनर्जी आती है, व्हेन दैट ओपन्स इट स्टार्ट रोटेटिंग विद द हाई एंगुलर वेलोसिटी बिटवीन द टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट. दोनों मैग्नेट के बीच में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें जब ये रोटेट होता है एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड व्हिच इज सफिशिएंट इनफ टू लाइट अ bulb for small period of time. Then we discussed EMF induced. Then we discussed EMF induced in aeroplane because of Earth's own magnetic field. Because of Earth's magnetic field, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड यानी जो भी प्लेन या एरोप्लेन या फिर ट्रेन, they all have the metallic rods, metallic axle. So since they move, they cut the magnetic field of Earth. So there is an EMF induced in it because of the flux passing through it. So EMF is induced because of Earth's magnetic field in the wings of an aeroplane or in the train along the axle. The practical application or practical uses, all the birds, migratory birds, they find the same direction every year where they are supposed to go by the EMF induced across their wings. Right? So EMF induced in the wings of an aeroplane. This was the last topic we were discussing. EMF induced in wings of an aeroplane. कर लिया था वैसे डिस्कस, बट थोड़ा जल्दी में किया था, एक बार फिर से डिटेल में. So Earth की magnetic field is from south to north. The horizontal component of Earth's magnetic field is from south to north. वर्टिकल कंपोनेंट या तो अंदर की तरफ होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या फिर बाहर की तरफ होगा सदर्न हेमिस्फीयर. So if a plane is moving from south to north, assume it is a plane, it's not a fish. Okay, so if an aeroplane is moving towards the north south direction, उसकी velocity है length के across, but it is perpendicular to the wings. Magnetic field of horizontal component of Earth's magnetic field is parallel to it. Vertical component is perpendicular. EMF वो वाला component induce करता है जो magnetic field velocity वाला दोनों के perpendicular हो. So if it is the vertical component, the EMF induces because of this vertical component. V is velocity, which is perpendicular to length and also perpendicular to vertical component. So EMF induced in the wings is vertical component into V into L, where VV is V sine delta. Vertical component के लिए formula था V sine delta, where delta is the angle of dip and B is the total magnetic field at that particular place. Saksham? 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 Very nice. सर Great. बर्ड्स कैसे पता चलती है डायरेक्शन? उनके विंग्स में कितना EMF इंड्यूस हो रहा है, कितनी उनको स्टिफनेस फील हो रही है बिकॉज ऑफ दैट करंट. EMF इंड्यूस होगा, उनको थोड़ी करंट फील होती है, करंट से उनकी बॉडी में कुछ शॉक टाइप लगता है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का. And similarly, if aeroplane is going from east to west, if it is going from east to west direction,
Then also EMF is induced because of the vertical component, क्योंकि अभी इसकी wings के parallel हो गया horizontal component because that is parallel to the north south direction. तो सर बर्म्यूडा ट्रायंगल में क्यों नहीं होता ईएमएफ इंड्यूस? बर्मुडा ट्रायंगल में बहुत कुछ नहीं होता भाई. बर्मुडा ट्रायंगल में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती. क्यों नहीं होती? मतलब होती है, बहुत हाईली इरेगुलर होती है. बर्मुडा ट्रायंगल क्या है? जगह. ओके, क्या होता है वहां पे? शिप्स गायब हो जाते हैं. ओके, फिर मिलते नहीं. व्हाट इज बर्मुडा ट्रायंगल? इज इट स्टिल अ मिस्ट्री? यस सर. कब की सॉल्व हो गई? हाँ हो, मैंने 11 में बताई थी शायद. बर्मुडा ट्रायंगल इज नो मोर अ मिस्ट्री. सर सॉल्व तो हो गया लेकिन सोल्यूशन नहीं मिला उसका. क्या हो गया? सर उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला. सोल्यूशन क्या है? वो नेचुरल फिनोमेना है, लोग जाते हैं वहां, मस्त, कोई टेंशन नहीं है. चलो कभी फुर्सत में करेंगे डिस्कस. इट्स नो मोर अ मिस्ट्री, इट्स रिजॉल्व्ड. वी हैव डिस्कस्ड इट. फिर कभी. ओके, अब ये चैप्टर खत्म कर लेते हैं. ईएमएफ इज इंड्यूस्ड. अब ईएमएफ इंड्यूस क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट से हो रहा है. वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम कहां पर होता है अर्थ में? वेयर इज द वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम? ईशा, वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम कहां पर होता है अर्थ का? ऐसे थोड़ी काम चलता है. अरे, इक्वेटर पे वर्टिकल कंपोनेंट 0, पोल्स पे वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम. इसलिए पोलर एरिया में जो ट्रेन चलती है या फिर व्हीकल, उनमें ज्यादा all the polar birds migrate because of that extra EMF induced, excess EMF induced. इक्वेटर पे अगर कोई ट्रेन चल रही है तो वहां पर most likely if it is only on the equator there will not be EMF induced across its axle, across the wings of the plane, because वहां पे vertical component 0 है. करेक्ट? ओके, आगे बढ़ते हैं. थोड़ी सी कुछ बकवासी चीजें. बकवास मीन्स थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है. वेरी यूजफुल बट इट्स अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट इज, अच्छा अभी एक और रहता है, मेथड्स ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स का. पहला था मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज करके, दूसरा एरिया टाइम के साथ चेंज करके, और उसी में एक अलग से केस हमने देखा मोशनल ईएमएफ. अभी जो हमने वो मेथड्स ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड डाला था, उसी की थर्ड हेडिंग है बाय रोटेटिंग और बाय चेंजिंग एंगल, बाय चेंजिंग एंगल between magnetic field and area vector. Because phi is equal to b times a times cos theta. b चेंज करके मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर सकते हैं, एरिया चेंज करके मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर सकते हैं, और तीसरा एंगल थीटा चेंज करके मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर सकते हैं. With the change of that magnetic flux, there will be EMF induced. So in this case, there is a loop of n number of turns. भी समझने के लिए एक लूप ले लेते हैं. It is kept in a perpendicular magnetic field. Area A, number of turns is n. Is kept in a constant uniform magnetic field. तो यहाँ पर magnetic field constant है, area constant है. Initially it is in the direction because area vector इसके perpendicular होगा और magnetic field भी perpendicular है. So it is perpendicular to the, initially it is in the same direction. Now, if this coil is rotated about any axis lying in its plane, इस coil को इसके plane में lie करने वाले किसी भी axis के about अगर हम rotate करते हैं with a constant angular velocity omega, तो magnetic field और area vector जो initially same direction में थे, initially magnetic field and area vector in same direction, अभी magnetic field तो same है, it started rotating. Because of that magnetic field, और ये बाहर की तरफ आ गया रोटेट करके, area vector now it will be at an angle theta. This coil started rotating. Due to that rotation,
of constant angular velocity. Initially था theta 0. In time t, that theta will be equal to omega t. So the angle between magnetic field and area vector is omega into t. Omega is constant angular velocity. So total number of turns in this loop is n. Area of this loop is capital A. It is kept in a perpendicular magnetic field, that is B. Area of loop is capital A. Magnetic field is B. Now when it is rotated, when it is kept in the magnetic field, the flux associated or linked passing through the coil at time t. फॉर्मूला था फ्लक्स का b into a into cos theta, number of turns n b a cos theta, and theta becomes omega t after time t. T is equal to 0, it is in the same direction. After time t, it is omega t. By rotating the coil, दोनों के बीच का एंगल चेंज हो रहा है, so there will be EMF induced since flux is changing with time. Just by rotation of this coil in external magnetic field, an EMF is induced given as minus d phi by dt. ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है कूलम्ब फोर्सेस, या आप ऐसे कर सकते हो, ये डॉटेड लाइन की रिप्रेजेंटेशन की अगर ना नहीं शो करता। So इसको डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा? This is minus d phi by dt. EMF induced in the loop. NBA cos का डिफरेंशिएशन माइनस 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 प्लस sin omega t by chain rule, इसको फिर से करेंगे तो ओमेगा. EMF induces NBA omega into sin omega t. NBA omega is the maximum value or peak value of EMF represented as E naught. So EMF developed or induces E naught sin omega t, where E naught is NBA omega is peak value. And this is the same supply जो हमारे घर में आती है. This is the alternating current AC which we use in the household. तो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है AC का, that is done by this approach, this method only. मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कॉइल को रख के रोटेट करते हैं, and because of that rotation of the coil, flux changes and EMF is induced. This is the AC voltage or AC supply which we receive in our household. इसमें एक टर्म है ओमेगा का. ओमेगा इज व्हाट? दिशा ओमेगा क्या है? क्या बोलते हैं ओमेगा को? नेगेटिव, क्योंकि वो लेंज लॉ के हिसाब से, फैराडेज लॉ में लेंज लॉ लगा दो तो E is equal to minus d phi by dt रहता है, since it always opposes the change, opposes the cause. क्या पूछा मैंने निशाद? ओमेगा क्या है? What is omega? Omega is angular velocity or angular frequency? What is the better word for? Omega is both. एक ही बात है. Angular frequency or angular velocity is same thing. No? Yes. Angular frequency, angular velocity is a different thing or same thing? Angular frequency is 2 pi into frequency, angular velocity is 2 pi by time period, 1 by time period frequency, so both will be same thing. इसके लिए यूज कर रहे हैं, then it depends. कॉइल के लिए वो एंगुलर वेलोसिटी है, जितनी वेलोसिटी से एंगुलर वेलोसिटी से कॉइल रोटेट होगा उतनी ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी की AC प्रोड्यूस होगी. That rotation of the coil decides what is the frequency of supply
अभी हम बात ये कर रहे थे कि ये ओमेगा इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू एफ. Since a frequency is usually 50 in India, at least pi is 22. 22 by 7. So this value of peak value is always chosen such that it is always multiple of 11. 11 का मल्टीपल होता है हमेशा. इंडिया में हाउस होल्ड सप्लाई 220 वोल्ट, यूएस में 110, चाइना में 110, इंडस्ट्रियल सप्लाई 440, जो इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से प्रोड्यूस होती है दैट इज यूजुअली 44 किलोवोल्ट. So it always have 11 multiple because of this fact. Right? Okay. ये क्या है? This is basically the alternating current or AC voltage. Alternating voltage और AC voltage, sinusoidal voltage जो हमें household supply में use होता है. That in detail we will see in next chapter. अगला chapter ये alternating current. अब इसमें दो तीन जो कॉन्सेप्ट है, ये एक्सेस कहीं से भी पास हो, डजंट मैटर. यदि एच से पास हो रही, if it is a diagonal, then also nothing will change. Even if it is rotated about diagonal, same number of terms, same magnetic field, same area, same angular velocity. बट अगर परपेंडिकुलर हो गई, ये एक्सेस परपेंडिकुलर हो गई प्लेन के और ये रोटेट हो रहा है, then nothing is changing. हमेशा फ्लक्स सेम है. No EMF will be induced. ये हाफ सर्कल भी हो सकता है, फुल सर्कल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, कैन बी एनी शेप. बस केवल इस ए की वैल्यू चेंज हो जाएगी. A will be used according to the shape, उस पर्टिकुलर ज्योमेट्री का जो भी एरिया होगा. And this is the working principle of all AC generator. जितने भी हम इलेक्ट्रिसिटी के सोर्सेस से जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, they all are working on the same principle. चाहे वो घर का छोटा सा जनरेटर हो या फिर कोई बड़ा सा इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट, they all work on the same principle. किस मेथड से हम उस कॉइल को रोटेट कर रहे हैं, that decides the thermal power plant or electric power plant, hydroelectric power plant, depends upon the energy that is used to rotate that coil. कॉइल को रोटेट करने के लिए हमने कौन सी एनर्जी यूज की है, that will make it thermal power plant, electrical power plant, hydroelectric, nuclear power plant, so on. Correct? Okay. So AC जनरेटर भी साथ ही में निपटा देते हैं. AC जनरेटर जो आपने शायद क्लास 10th में पढ़ा है. AC जनरेटर वर्क्स. हाँ बेटा, सर मैं छोड़ के गया था, पढ़ा नहीं था मैंने. आप महान है. अच्छा क्या छोड़ दिया. सर बोर्ड में इसका क्वेश्चन भी आया था. अच्छा, फिर भी छोड़ के गए. कोई बात सर वो एग्जाम बैठने के बाद पता चला था कि छोड़ना नहीं चाहिए था. So these are the two strong poles of magnet. और एक का नॉर्थ पोल, एक साइड साउथ पोल. इनके बीच में एक कॉइल रख के उसको रोटेट करते हैं with a constant angular velocity. That rotation is provided by some external mechanical energy source. There is a coil kept in this magnetic field connected to a shaft. ये वैसे नेक्स्ट चैप्टर में है, एसी में है, बट हम इसको अभी साथ साथ निपटा लेते हैं बिकॉज वी हैव जस्ट डन द प्रिंसिपल ऑफ इट. क्या था बताओ, 10th में पढ़ रखा है. आगे क्या करते हैं इसमें रुद्र, क्या था आगे? कुछ जनरेटर में क्या बनाते हैं, कुछ स्प्लिट रिंग प्लीज. तुम मजे ले लो.
सर इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। यस बोलो बोलो। स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग? स्प्लिट रिंग क्या काम करती है स्प्लिट रिंग? Okay, so it is one ring divided into two pieces. और रीजन इसका क्या होता है? फ्लक्स हाफ पे तो इंक्रीज हो रहा है बट रेस्ट हाफ फ्लक्स इज डिक्रीजिंग। ये पहले रोटेट होगा तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, देन फ्लक्स इज डिक्रीजिंग। तो हाफ में फ्लक्स इंक्रीज होने से क्लॉकवाइज, हाफ में एंटी क्लॉकवाइज, तो वो कहानी हो जाएगी। इसलिए टू मेंटेन इट ऑल इन द सेम कॉन्टैक्ट इट इज स्प्लिट रिंग विद कार्बन ब्रशेस। और यहाँ पर AC जनरेटर हमें AC सप्लाई मिल जाती है, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। अब आगे इसके अटैच होता है शाफ्ट के ऊपर टरबाइन, एंड ऑन दैट टरबाइन हाउ वी प्रोड्यूस दैट। सो डैम में वाटर स्टोर करके और उसके ऊपर अगर हम ऑन करते हैं देन दैट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। वो इसको रोटेट करता है, बिकॉज ऑफ दैट रोटेशन दिस कॉइल रोटेट्स। कॉइल रोटेट होने से इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से there will be change in magnetic flux that will induce an EMF. Correct? Magnetic flux change होने से EMF induce होगा, that EMF is sinusoidal, NVA omega sin omega t। EMF induce करने का सबसे easy तरीका है, बाहर की कोई अगर बाहर से स्टीम थर्मल पावर प्लांट में वाटर को गर्म करते हैं, हाई प्रेशर पे स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, दैट हाई प्रेशर स्टीम स्ट्राइक्स दिस टरबाइन ब्लेड, इट रोटेट्स, दैट रोटेशन विल कॉज अगेन चेंज इन फ्लक्स एंड EMF इज इंड्यूस्ड। राइट? ओके, तो इसमें कुछ खास नहीं है। दिस वर्क्स ऑन व्हिच प्रिंसिपल? इसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है? When a coil rotates in the magnetic field, EMF is induced. EMF is induced, so it works on Faraday's law of electromagnetic induction. That's it. बाकी आपने 10th में पढ़ रखा है, क्या है शाफ्ट, क्या है कॉइल और क्या है। Because it's same potential. इसका joint और नीचे का mid point. ओके, सो एसी जनरेटर में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के हम इसकी कुछ EMF कितनी चाहिए वो इंक्रीज कर सकते हैं। NVA ओमेगा sin omega t, it is periodically changing alternating EMF। EMF चेंज हो रहा है, सो करंट भी चेंज होगा। by change of that current we get, so this is a AC half cycle clockwise, half cycle anti-clockwise. Frequency of AC will be decided by the speed of rotation of coil, which is also different in different countries. In India 50, in US 60, in UAE 80, in Pakistan 40 hertz. Okay, so ये 3 different ways हो गए of changing magnetic flux. We did the mathematical analysis also and conceptual analysis also. What causes the change in magnetic flux? If flux is changing for any reason, there will be an EMF induced. That EMF induced is only till the point flux keeps on changing. अभी हमने केवल एक दो का रीजन समझा है। What is the reason of EMF induced here? Again, force on the electron, because में भी conductor move कर रहा है, rotate कर रहा है. It's also kind of the motion is producing that EMF. Okay. एक छोटा सा फॉर्मूला जो अक्सर मिस हो जाता है वो भी देख लेते हैं। जब भी किसी भी कॉइल में हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, if flux is changing, EMF is induced. If EMF is induced, there will be some amount of current. और उस करंट की वजह से कुछ चार्ज भी पास होगा। some charge will pass through that
circle, that coil or that loop. So next is total charge passed during induction. जैसे मैग्नेट को पास में लाया, जितनी देर तक मैग्नेट पास में आ रहा था केवल उतनी देर में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, उतनी देर के लिए करंट है. ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम हाउ मच चार्ज हैज फ्लोन थ्रू इट. So total charge passed during flux change or during induction. Total charge passed during induction or during flux change. Current is there because EMF is there. And if current is there means there is charge flow as well. Total charge passed during flux change. Flux is caused because of flux is changed because of the some source, maybe coil, magnet is coming closer. As the magnet comes closer, there will be some induced current. Because of that induced current, we need to find how much charge has flown during this change of flux. So total charge का फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी. अगर टी टाइम के लिए फ्लक्स चेंज हो रहा है तो आई इज द करंट, ईएमएफ ई इंड्यूस है और रेजिस्टेंस है अगर आर, आई विल बी ई बाय आर. If I is E by R, 1 by R बाहर निकाल लेते हैं. E induced become d phi by dt according to the Faraday's law. dt dt cancel. Integration बचा केवल phi पे, d phi. Initial phi 1, final is phi 2. Total charge passed during induction. d phi का integration phi and apply limit phi 2 minus phi 1 by R. So total charge passed during change, that is delta phi by R. Flux change divided by resistance. That is the formula for total charge passed during the induction. When flux changes, that change in flux causes the induced current. That induced current means there is a flow of charge. How much charge has flown is given by this. Total charge passed during flux change. Is equal to change in flux divided by resistance of the coil. Doesn't depend upon the time. Right? So we did magnetic flux, we did change of methods of changing magnetic flux, magnetic field with time, area with time, and area with time, and there was motional EMF. Due to the motion of part of conductor, there is an EMF induced called as motional EMF. तीसरा मेथड था किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रख के रोटेट करते हैं. That rotating coil also develops an EMF, which is used in the household supply as the AC voltage. Right? Okay. Next concept is थोड़ा सा theoretical concept है, which has many practical applications, called as eddy currents. Eddy currents. Next concept is eddy current. What is eddy current? What is eddy, by the way? EDDY. Eddy. इसको बोलते हैं eddy.
ब्रांच इंग्लिश का वर्ड है, इसलिए पूछ रहा हूँ, ऐसे नहीं पूछ रहा। फिजिक्स नहीं, फिजिक्स वाला तो आई विल टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडी। E double dy, it's eddy current. एडी का मतलब होता है टॉर्नेडो, वो वर्लपूल ना टॉर्नेडो। टॉर्नेडो तो हवा का होता है। पानी के अंदर जो सर्कुलर करंट होती है, साइक्लोन हवा का होगा ना। साइक्लोन का मतलब होता है सर्कुलर विंड, और वर्लपूल का मतलब होता है पानी के अंदर। तो कुछ पानी के अंदर वाली है, दैट इज काइंड ऑफ एडी करंट। सो एडी करंट क्यों है, कहाँ है, कैसे है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी हम जितने भी केसेस लेते थे, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया एक लूप। वो लूप सर्कुलर भी हो सकता है, वो लूप स्क्वायर भी हो सकता है, वो लूप रेक्टेंगल भी हो सकता है। अब ये अभी बनाना नहीं है, बनाना नहीं है, वेट, सिर्फ समझाने के लिए है अभी। अगर कोई एक सर्कुलर वायर है तो हमें पता है फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसके अंदर करंट आ जाएगी, ये हमें पता है। दिस इज द डायरेक्शन वी ऑलरेडी नो, इज गोइंग टू बी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। अब इंस्टेड ऑफ दिस सिंगल लूप, इंस्टेड ऑफ दिस सिंगल लूप ऑफ एनी कंडक्टिंग वायर, हमने इसी में रख दिया कोई मेटेलिक शीट। इंस्टेड ऑफ वो एक वो फ्रेम जैसा था, उसकी जगह पे हमने एक पूरा का पूरा मेटल की कोई शीट रख दी, जैसे सपोज कॉपर और एल्यूमिनियम। इसमें कहाँ पे करंट फ्लो होगी? इफ मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विद टाइम, इस पूरे शीट से पास होने का फ्लक्स चेंज हो रहा है। डिफरेंस समझ में आ गया? पहले क्या था? इट वाज अ सिंगल फ्रेम ऑफ वायर, बस यही वायर है, ओनली दिस मच, करंट केवल उसी में पास होगी। अभी क्या है? मेटल की शीट है, कोई वायर नहीं है, इट्स अ होल मेटल एल्यूमिनियम शीट। व्हेन फ्लक्स चेंजेस थ्रू दिस विद टाइम, इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसमें भी करंट होगी, लेकिन कहाँ होगी? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट? एवरीवेयर। पूरा ही है ना, ये तो मेटल पूरा कंडक्टर है। तो इसमें एक बस बाहर वाले थे, इसमें ऐसे छोटे से लेके और जितने भी लूप बन सकते हैं, ऑल लूप्स विल हैव द करंट। सब जगह पे करंट होगी, ये होनी एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज ही है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो कम करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज। ये एक सिंगल शीट था। अब सपोज हमने रख लिया कोई बड़ा सा मेटल का ब्लॉक, आयरन का एक क्यूब, या आयरन किसी भी मेटल का, नॉट आयरन, आयरन इज ओनली फॉर एग्जांपल, एनी मेटल, मेटेलिक बल्क पीस इज टेकन इनटू अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, या किसी रीजन की वजह से इसके अंदर जो पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। When a solid bulk metal piece is kept in a time varying magnetic field, or when magnetic flux passing through, suppose हमने इसको किसी दो बड़े से मैग्नेट के बीच में रख दिया and it is oscillating, ये अंदर बाहर कुछ ऑसिलेट हो रहा है, so it goes in, flux increases, when it comes out flux decreases। इस बड़े से मेटल के पीस के अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसमें भी करंट आएगी। कहाँ पे करंट आएगी? अगेन एवरीवेयर, all the possible paths, all the possible loops, there will be current। इस लूप को अब हम एज्यूम कर सकते हैं इट इज मेड अप ऑफ थिन शीट्स। ये तो एक शीट भी, ऐसे बहुत सारी शीट का कॉम्बिनेशन एज्यूम कर सकते हैं साइड बाय साइड। वी कैन एज्यूम इट इज मेड अप ऑफ शीट्स ऑफ। तो ये पहली शीट की करंट सारे आपस में कनेक्टेड ही है, ये दूसरी शीट की करंट, ये तीसरी शीट की करंट, एंड सो ऑन। सो देयर विल बी अ सर्कुलर करंट induced throughout the volume of a metal। This looks like water eddies, जैसे वाटर में whirlpool होता है वैसे ही दिखती हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं एडी करंट। कॉन्सेप्ट क्लियर? एडी करंट कब इंड्यूस होगी? जब किसी सॉलिड बल्क मेटल पीस को, सॉलिड बल्क मेटल, प्लीज राइट, व्हेन सॉलिड बल्क लिखना है, sorry, when magnetic flux
passing through a solid bulk metal piece is changing with time when magnetic flux passing through solid bulk metal piece is changing with time. A circular current is induced. A circular current is induced throughout. Circular current is induced throughout the metal. Throughout the metal, called as eddy current, as it looks like water eddies. Called as eddy current, as it looks like water eddies. क्यों हो रहा है समझ आ गया? राइट, अगर एक लूप है तब तो हमें डायरेक्शन पता है करंट किधर जानी है. बल्क मेटल है तो हर तरफ जा सकती है, so it will be everywhere. Now is it a good thing or bad thing? होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? इससे हमें फायदा है नुकसान है? एडी करंट का कुछ फायदा है नुकसान है सर्किट में? Is it desired or no? मेटल है और मेटल में करंट है, नहीं होना चाहिए, ये कह रहे हो ना? क्यों नहीं होना चाहिए? क्या प्रॉब्लम है? एडी करंट होने से नुकसान क्या है? कौन सा फ्लो? इसका फ्लो हो ही नहीं रहा है, तो अलग से हमने आयरन रखा हुआ है. फ्लो के लिए तो अलग वायर में करंट है, देयर इज सम सेपरेट वायर. ये तो बीच में कहीं आपको बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए आयरन की केसिंग लगानी पड़ी सपोज, समझ गए? दिस इज नॉट कनेक्टेड टू एनी वायर, इसके अंदर कोई बाहरी करंट नहीं जा रही है. व्हाट इज द एप्लीकेशन? ये फायदा है नुकसान है, क्या प्रॉब्लम है? होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? वी वांट दिस टू बी देयर और नॉट? यस, एनीवन? क्वेश्चन तो क्लियर हो गया ना? ध्रुव, एडी करंट हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? एडी करंट से नुकसान है कि फायदा है सर्किट में? ध्रुव, okay. Fish, eddy current should be there or not? Fish, हाँ, एडी करंट से प्रॉब्लम है, नुकसान है क्या? करंट है और मेटल के अंदर है, मेटल में रेजिस्टेंस होगा वायर में. अगर किसी रेजिस्टेंस वायर में करंट पास होती है तो क्या होता है? When current is passed in a resistance, heat is produced. Heat, और यहाँ पे तो बहुत सारी करंट है, बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होगी, and that heat can even melt this metal. तो बहुत जल्दी वो मेटल खराब हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, सर्किट में एनर्जी लॉस होगी हीट के फॉर्म में. इसीलिए हमें इसको मिनिमाइज करना. कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? व्हाट आर द पॉसिबल वेज टू मिनिमाइज? देखो मेटल की प्रॉब्लम है. सर्किट में कहीं पे आपको बड़ा सा लोहे का कुछ लगाना है, कोई मेटल का बॉक्स लगाना है, मेटल की कुछ स्ट्रिप लगानी है, तो उसको प्लास्टिक तो बना नहीं सकते. हमें मेटल से जो स्ट्रेंथ मिलती है वो ऑब्वियसली कैन नॉट बी फ्रॉम एनी अदर मटेरियल. तो अगर मेटल यूज ही करना है, देन व्हाट शुड वी डू टू मिनिमाइज दिस हीट लॉस? इसको ब्रेक कर देते हैं. ये बहुत ज्यादा क्यों है? बिकॉज all the loops are connected in series. तो जब भी हमें यूज करना होता है, हम बल्क, किसी भी बल्क मेटल को एज अ सॉलिड पीस ना लेके उसको अलग से डिजाइन करते हैं. कैसे डिजाइन करते हैं? अगर सपोज शीट चाहिए तो शीट शुड हैव स्लॉट्स कट.
उसमें बीच बीच में स्लॉट्स कट कर देते हैं, गैप छोड़ देते हैं, मतलब ऐसे कट कट। ये हम लोग लैब में करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लैब में काट के लगाना पड़ता है, एंड यू हैव टू चेक द एफिशिएंसी हाउ मच इट हैज इम्प्रूव्ड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ट्रांसफार्मर एंड ऑल। करेक्ट। इससे क्या फायदा हुआ, मतलब ये पूरा कट, सो सो जो वो सर्कुलर लूप्स थे बहुत छोटे छोटे हो गए, बस ये इसका दूसरा तो कोई वास्ता नहीं, बीच में कट है, सो द लूप साइज विल रिड्यूस। और ऐसी शीट्स को हम साइड बाय साइड लगाते हैं, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ बल्क मेटल वी ऑलवेज मेक अ लैमिनेटेड कोर। एक शीट, नहीं नहीं, फिर हम ऐसी शीट लेंगे, बीच में लगाएंगे इंसुलेशन। इंसुलेशन मतलब वो कुछ भी लगा देते हैं, वार्निश पेंट के बाद लगाते हैं ना उसको चमकाने के लिए, वैसा कुछ वार्निश या लैक्रेल आता है, उसके बाद दूसरी शीट रखते हैं इसके ऊपर। तो कभी भी एक बड़ा सा मेटल एक साथ नहीं लेंगे, इट विल बी ज्वाइंट शीट बाय शीट, और इनके बीच में इंसुलेशन लगाते हैं, एक शीट का दूसरे शीट से कोई इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट ना रहे, एक शीट में जो करंट है वो दूसरे को अफेक्ट ना कर पाए, दूसरे को ज्वाइन ना करे। तो पहले तो ये शीट्स कट कर देते हैं, स्लॉट्स, उसके बाद इनको वन बाय वन, दिस इज कॉल्ड लैमिनेटेड कोर, स्लॉट कट laminated core. This is having a slot cut sheet and it is used to make a laminated core. Laminated core का मतलब किसी भी दो शीट के बीच में एक लैमिनेशन है इसका insulated material का, so due to which, so please write, to minimize the heat loss due to eddy current, to minimize the heat loss due to eddy current, a bulk metal is always, a bulk metal is always used in the form of laminated core, is always used in the form of laminated core instead of a bulk piece. Instead of a bulk piece. Correct? एक बड़ा सा पीस ना यूज करके हम अलग अलग, अब लेकिन इसका फायदा भी हो सकता है, देयर आर मेनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। क्या फायदा हो सकता है, हीट का क्या फायदा हो सकता है, ये तो एनर्जी लॉस हो रही है ना, हीट लॉस, इसको एडी करंट लॉस बोलते हैं, मिनिमाइज करने का एक ही तरीका है लैमिनेटेड कोर यूज करते हैं। एडवांटेज कहाँ पे, सपोज हमें मीटर इस मेटल को मेल्ट ही करना है, वी वांट टू मेल्ट दिस मेटल, मतलब फर्नेस में, इंडक्शन फर्नेस सुना है, केमिस्ट्री में सुना होगा शायद, इंडक्शन फर्नेस सुना है, इंडक्शन फर्नेस, रिवर्बरेटरी फर्नेस, और बहुत सारी होती हैं, रिफ्लेक्ट, मतलब ओके चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, केमिस्ट्री में इंडक्शन फर्नेस यूज करते हैं उन मेटल्स के लिए जिनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, जिनको आग लगा के मेल्ट नहीं कर सकते, जिनको हम नॉर्मली हीट करके मेल्ट नहीं कर सकते, उनके लिए तरीका होता है एडी करंट मेटल के लिए। सो एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट, पहला इन इंडक्शन फर्नेस, वैसे तो लॉस है क्योंकि बहुत सारी एनर्जी हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी, बट देयर आर मेनी
इन इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस क्या होता है? उन मेटल्स को जिनको हम यूजुअली नॉर्मली मेल्ट नहीं कर सकते, किसी सोलेनॉइड के अंदर रखते हैं और सोलेनॉइड में एक हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट पास कर देते हैं। करंट को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ करंट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ बढ़ेगा, ईएमएफ बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगी, और उस मेटल के अंदर जो एडी करंट इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दैट, it will melt or it will be heated. इंडक्शन, जो जितने भी इंडक्शन वर्ड आपने सुने, इंडक्शन कॉयल, जो इंडक्शन कुक टॉप होते हैं, वो भी ऐसे ही कुछ प्रोड्यूस करते हैं। इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन कुक टॉप जो होता है ना, इंडक्शन में हम खाना बना सकते हैं, उसका भी सिमिलर प्रिंसिपल ही है। उसके ऊपर जो मटेरियल मेटल लगा होता है उसमें भी हम एडी करंट पास करके हीट प्रोड्यूस करते हैं, एंड that is why some specific type of material is required. इंडक्शन में अगर आप नॉन इंडक्शन वाले यूटेंसिल रखते हैं तो भी खाना गर्म हो जाएगा, बट बहुत टाइम लगेगा बिकॉज इट डज नॉट हैव एज मच ऑफ एडी करंट इंड्यूस्ड। मेटल जिसको मेल्ट करना है उसको अंदर रखते हैं। ये बस डायग्राम से देख लो, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, पेपर ऑब्जेक्टिव है। इसके अंदर कोई एडी करंट इंड्यूस होगी, दिस इज मेटल, इसके अंदर जो एडी करंट इंड्यूस होगी, दैट एडी करंट विल प्रोड्यूस सफिशिएंट हीट टू मेल्ट इट। ये तो हो गया एक हीट वाला एप्लीकेशन। डायग्राम बाकी बुक से पढ़ लेना, बुक में लिखा हुआ है अच्छे से काफी डिटेल में। अभी आपको सिर्फ प्रिंसिपल समझना है। दूसरा क्या फायदा हो सकता है सर्कुलर करंट का? ये सर्कुलर करंट है। एवरी क्लोज्ड लूप कैरिंग करंट कैन बी कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। एक तरफ है नॉर्थ पोल, एक तरफ है साउथ पोल। क्लोज लूप का मतलब एक मैग्नेट छोटा सा। इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है कितना होता है? आई इंटू ए या एन आई ए। अगर इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दे, मैग्नेटिक फील्ड इज बी, क्या होगा फिर? अ कॉइल क्लोज लूप kept in a magnetic field, what does it experience? Force or torque? क्लोज लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो फोर्स कितना लगता है? जीरो, बिकॉज फोर्स का फॉर्मूला था बी आई एल साइन थीटा आई एल क्रॉस बी। एल वेक्टर इज जीरो बिकॉज इट इज a closed loop, but there is a torque. टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क का फॉर्मूला, क्लोज लूप पे टॉर्क का फॉर्मूला। हर बात में थोड़ी चलता है काम, पिछले चैप्टर में पढ़ा है अभी, याद करो। कब एग्जाम? अभी इधर को एग्जाम नहीं हुआ पहले, उसका सिलेबस फर्स्ट 3 चैप्टर। टॉर्क इज एक्टिंग ऑन अ लूप ड्रिवन बाय एम बी साइन थीटा या एम क्रॉस बी। जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा, यानी जितना ज्यादा एरिया होगा, उतना ही ज्यादा टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। एक लूप था एम क्रॉस बी, यहाँ पे तो लूप पे लूप है, ढेर सारे, सो मेनी लूप्स। डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर लगा देते हैं तो बिकॉज ऑफ दिस एडी करंट इंड्यूस इनसाइड, there will be a huge amount of torque, और उस टॉर्क को यूज करते हैं, उस टॉर्क को यूज करते हैं some specific purpose में। one of them is in electric brake। इलेक्ट्रिक ब्रेक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक, कहाँ लगाते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेक? इन इलेक्ट्रिक ब्रेक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक कहाँ पे लगाते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेक? मेट्रो ट्रेन में, बुलेट ट्रेन में, इमरजेंसी ब्रेक में, मतलब बड़ी हैवी व्हीकल्स में। इलेक्ट्रिक ब्रेक का जो कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल, दैट इज बेस्ड ऑन अगेन ऑन एडी करंट। सपोज ये कोई बुलेट ट्रेन है, इट रन्स एट वेरी वेरी हाई स्पीड। इतनी स्पीड पे हम वो नॉर्मली ब्रेक नहीं लगा सकते,
फ्रिक्शन वाली ब्रेक नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि फिर वो सारे उसके जो ब्रेक पैड है, ब्रेक शूज है, वो एक ही बार में खत्म हो जाएंगे बाय द फ्रिक्शन, मैकेनिकल वियर एंड टियर से वो हीट होकर मेल्ट हो जाएगा। तो एवरी टाइम हमें नई ब्रेक चेंज करनी पड़ेगी, जैसे कि फॉर्मूला 1 में होता है, 2-4 लैप के बाद दे हैव टू चेंज द ब्रेक एंड टायर एवरीथिंग बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, क्योंकि उतनी हाई स्पीड पर फ्रिक्शन से स्टैटिक फ्रिक्शन विल प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट। तो इसमें तो ऐसा कर नहीं सकते रोक के हर स्टेशन पे चेंज करेंगे, इसलिए ये जो मेटल के व्हील्स हैं इनके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे होते हैं बोथ साइड। दीज आर द मेटलिक व्हील्स, उनके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगा देते हैं। जब हमें इसको रोकना है, इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग अ ब्रेक, इसके अंदर हाई फ्रीक्वेंसी एसी पास करते हैं। ऑन दीज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स a high frequency alternating current is passed. हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट पास करेंगे, इसके अंदर का फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर एक एडी करंट इंड्यूस हो जाएगी, एंड दैट एडी करंट इंड्यूस्ड, दिस बिकम्स अ मैग्नेटिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल बिकम्स, इसके अंदर एक टॉर्क, इस डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं बाहर से, टॉर्क शुड बी अपोजिट टू द रोटेशन ऑफ व्हील। अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है तो टॉर्क लगना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, एंड दैट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क will stop this wheel without the heat loss or without the mechanical wear and tear. तो मैंने बस डायग्राम बनाया है, डायग्राम से समझ लो, ज्यादा कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम से बुक से पढ़ सकते हैं, इन एनसीईआरटी आल्सो, इन एसएल आल्सो, थोड़ा थोड़ा कुछ लिखा है इसके बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक लगाने का मतलब है हमने मैकेनिकल नहीं लगाया, हमने करंट पास कर दी, अल्टरनेटिंग करंट। ड्यू टू दैट करंट अपोजिट में एक टॉर्क डेवलप करते हैं, एंड दैट टॉर्क स्टॉप्स द व्हीकल ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली, बिकॉज दिस टॉर्क इज वेरी वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ टॉर्क। करेक्ट? ओके। और है कुछ 2-3 एप्लीकेशन, वो हम करते हैं टुमारो नेक्स्ट क्लास। एडी करंट के बाद इंडक्टर, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा सा रहता है, we'll try to finish it tomorrow। इसकी जो और 2-3 एप्लीकेशन है वो पढ़ लेना बुक से, अगर समझ में नहीं है then we will discuss, right? Okay then, thank you।